it is our 5-day course from 1st June to 5th June. So our first lesson is about introduction of ours. Main problem actually what we have data management's problem. So what we are problem facing in different softwares and in our daily management. So first problem with the data management is to understand large data. You have very big data of your project of your PhD and your student data sometimes. So it is difficult to handle this large data. I will show here some examples so you will understand my point. I will show you the screen. Excel sheet is displaying to you, all of you. Excel sheet is on your screen. Dr. Isha, you are looking Excel sheet? Yes. Okay. All of you, okay. So this is the Excel sheet of our one PhD students. So you can see that he has data of 18 and 19 2-year data. So years, waters, it's potassium treatments and genotype. So these have these 4 treatment variable and these are its measured variables. So it has 14, 18. This is one sheet of one parameter average ball weight. Its second sheet is third sheet, 4th sheet, 5th sheet, 6th sheet, and so on. He has also in other sheet. So I'll show you that. You can see that he has more than 40 sheets of each parameter. He has made a separate sheet. So he has 16 parameters. For every parameters, he had made a separate sheet for data management. So you can see that's how in this shape, if our students are our PhD will put data on Excel sheet for every parameters on different things. So, and he is calculating standard deviation separately and standard error for, and it's for making all this graph. So this is very big problem to handle your data, understand your data. So in R, we need only one Excel sheet for all your data. If you have multiple location data, if you have more than 1 year data, so you do not need any more sheets. So he has made 40 sheet for each parameters, but now you can see that this sheet. Now you are seeing, Dr. Isha, you are seeing one sheet where all parameters are present. Hello. Hello. Dr. Marekan, you are looking sheet, one sheet. Yes sir, एक्चुअली हम लोगों ने माइक बंद किया है ना, तो फिर वो उसको दोबारा ऑन करने में टाइम लग रहा है. Okay. ठीक है. Okay. Okay. 1 minute, Dr. Saifur Rahman is joining us. Okay, Dr. Saifur Rahman, my sound is clear and you are looking screen. Dr. Saif, sir, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर सैफुर रहमान सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन भी नजर आ रही है एक्सेल शीट वाली? यस सर, नजर आ रही है. ओके ओके, तो हम ये स्टार्ट ले रहे थे डॉक्टर साहब के एक स्टूडेंट जो हमारा एमएससी या पीएचडी का स्टूडेंट है, वो मतलब हर डाटा के लिए, ये मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ इसमें, ये आपके पास है, ये आपको एक शीट नजर है एक्सेल पे. देखें हमारे एक स्टूडेंट ने हर पैरामीटर्स के लिए अलग अलग शीटें बनाई है और इन शीटों से फिर उसने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, स्टैंडर्ड एरर निकाला है. तो इस तरह डाटा को समझना या मेंटेन करना इंतहाई डिफिकल्ट है. बाज़ औक़ात मुख्तलिफ लोकेशन का डाटा है, बाज़ औक़ात आपके पास ईयर वाइज डाटा है, तो टाइम का डाटा है या लोकेशनों का डाटा, तो उसके लिए अलग अलग शीट बनाना और उसको मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए या उस टीचर को समझाने के लिए कि डाटा क्या बता रहा है आपके पास. अब ये देखें, ये सारे 40 शीट्स थी, फिर मैंने इसको एक सिंगल शीट पे अरेंज किया. आपके पास ये आपके पास स्क्रीन नजर शीट नजर अरेंज डाटा के नाम से. इसमें देखें हमने 40 शीट्स 40 पैरामीटर्स को एक ही शीट पर लेकर आए. इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. ये हम तीसरे लेसन में जाके आप देखेंगे कि इसमें से हमें जो भी डाटा आर में से चाहिए, हमें इसमें से एक लोकेशन चाहिए, 1 साल का 2018 का डाटा चाहिए, 2019 का डाटा चाहिए, तो वो हम इससे हासिल कर सकते हैं. आर के अंदर हम कोड देंगे, आर बाकी सारे डाटे को साइलेंट कर देगा और उसमें से जो आपको रिक्वायर्ड डाटा होगा वही निकल आएगा. और इसी शीट से आप देखेंगे हमारे फ्यूचर लेसन्स के अंदर कि हम मतलब इसी से स्टैट लगा, इसी के डाटे को समझेंगे और इसी डाटे पे स्टैट लगाएंगे और इसी डाटे पे हम ग्राफ बनाएंगे इसी शीट पे. हमें कोई भी अलग ग्राफ के लिए अलग शीटें नहीं चाहिए, स्टैट के लिए अलग शीटें नहीं चाहिए. और आपको
डाटा को समझने के लिए। कोई आपको इसमें से वैल्यूज कोई गड़बड़ हो रही है तो हम आर में कमांड देंगे, वो आपके पास वैल्यू वहीं आउट हो जाएगी डाटा से, या वो आपके पास साइलेंट हो जाएगी। इसमें से कोई भी आपको मैनुअल एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप आर पे कमांड हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप, मैंने बताया, आपकी मल्टीपल शीटों से जान छूट जाती है। आपके पास कोई भी मैनुअल एडिटिंग की आपको आर में जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी सेल को, किसी भी कॉलम को साइलेंट करना चाहते हैं, अब इसमें से आप कोई भी कॉलम उड़ाना चाहते हैं, वो आर के अंदर आप कमांड देंगे, वो आपके पास कॉलम साइलेंट हो जाएगा। उसके लिए ये नहीं है कि आप इस आम रूटीन में हमारा स्टूडेंट या क्या करते हैं हमारे लोग, उसमें से फिर कोई चीज डिलीट करनी है, कोई चीज ऐड करनी है, तो वो इसमें से आपको नई शीट बनाएंगे। तो इस तरह नई शीटें बनते बनते आखिर में एक ऐसी स्टेज आती है कि हमारे स्टूडेंटों को ये नहीं पता चल रहा होता कि असल वाला डाटा कौन सा है और जो हमने चेंजेस किए थी वो वाला डाटा कौन सा है। तो इस सारी कंफ्यूजन को, डाटा मैनेजमेंट को आपके पास आर में आप इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं इजीली। तो आपको कुछ भी आप ओरिजिनल डाटा आपको ओरिजिनली रहेगा, और जो आपके पास आप करेंगे वर्किंग सारी, वो आर के अंदर फाइलें बनती जाएंगी, ना कि आपको मैनुअल शीटें बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है कि डाटा मैनेजमेंट आपके लिए आसान हो जाता है, डाटा को अंडरस्टैंड करना, डाटा को मैनेज करना, और सिंगल शीट से आप सारी चीजें इजीली कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई और, आप तीसरे लेसन में देखेंगे, आप एक आपको कॉलम 40 यहाँ पैरामीटर इस शीट में दिए हुए हैं, इसमें से आपको 10 पैरामीटर चाहिए, 10 कॉलम चाहिए, तो वो आप आर को कमांड देंगे, वो 10 आपके पास कॉलम आपको अलग कर देगा। वो एक आर के अंदर फाइल बन जाएगी, ना कि आपको अलग से एक फाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से आपका ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल शीट वैसे के वैसे सेफ रहेगी। आपके मल्टीपल शीटों से आपकी जान छूट जाएगी, मतलब आर के अंदर मेन चीज ये है। तो मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे मेन हमारे पास मसला आ रहा है डाटा के अंदर ना, लोगों को मतलब सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं, जो हमने देखा है। अभी जो मैंने आपको पीएचडी का ये स्टूडेंट है, इसी में मतलब यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से काम कर रहा था, और उसको समझ नहीं लग रहा था डाटा कैसे करूँ, उस पर क्या चीजें करूँ। लेकिन जब हमने उसको एक ही शीट पे डाटा अरेंज करके दिया, उसी से हमने स्टैट लगाई, उसी से हमने ग्राफ बनाए, तो उसके लिए उसकी चीजें और पब्लिकेशन उसके लिए अच्छे जर्नल में पब्लिश करना उसके लिए आसान हो गया। तो मेरे इस पॉइंट को किसी ने पिक किया हो, थोड़ा सा ऐसा ऐसा में चलेंगे ताकि लोग अंडरस्टैंड करते जाएं चीज़ों को, मसला ना हो। जी सर understand किया। जी जी। डॉक्टर सैफ रहमान, क्या आप रिपीट करेंगे थोड़ा सा? ये इशू तो मतलब हर बंदे को पाकिस्तान में हो रहा है ये चीज़। हेलो। जी जी सर, आप जो है कह रहे हैं कि क्योंकि मल्टी जो है डाटा बहुत ज़्यादा होता है, और पहले तो एक्सेल का यूज़ भी जो है डिफिकल्ट होता था। चले एक्सेल के अंदर काफ़ी सारी शीट्स जो है ना जो बना ली हैं, तो उसको कंपाइलेशन करना और उसके ऊपर आपने कौन सा सॉफ्टवेयर जो स्टैटिस्टिक्स का टूल है उसको जो है लगाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टेप यही होता है डाटा कलेक्शन के बाद डाटा जो है कंपाइलेशन और उसको किसी स्टैटिस्टिक्स टूल के लिए लेके जाना। तो ये आपने बहुत अच्छा जो है बताया कि आर का यूज़ करेंगे, तो उससे पहले ही आपने तमाम शीट्स को एक जगह पे जो है इकट्ठा किया। तो आर के अंदर कमांड्स ही हैं मेन, और वो अगर इजी मतलब वो अंडरस्टैंड हो जाए तो फिर ये सारा प्रोसेस जो है ना इजी हो जाता है। सर्च और बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ सर बिल्कुल समझ आ इस रही है इसकी? हाँ बिल्कुल, मतलब इसी तरह पहले पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसको अरेंज कैसे करना है, आपकी प्रॉपर अरेंज होगा डाटा, आपको एक्सेल पहले समझ होगी तो आर के अंदर आप उसको चला सकेंगे। अगर आपको बेसिकली आपका डाटा प्रॉपर अरेंज नहीं है, चीजें नहीं है, तो आपने उसके बाद तो आर तो नहीं, अगर आप 10 सीटें आर के आगे रख देंगे तो आर तो परेशान हो जाएगा कि किस सीट पे मैंने काम करना है आपके पास। तो मतलब अगर पहले आप एक शीट पे सारा डाटा मुख्तलिफ लोकेशनों का, मैंने यानी कि आपको 10 लोकेशनें हैं आपकी, आपके पास मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है आपके पास, तो आपको मुख्तलिफ शीटें बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही शीट पे अपना सारा डाटा डाल दें, उसके बाद आर उसको खुद ही, मतलब आर के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास आप कैसे लोकेशनों को अलग कर सकते हैं। अपनी ट्रीटमेंट, आपकी 4 ट्रीटमेंट है, आप 2 ट्रीटमेंट पे एक पेपर लिखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बाजू का थीसिस के चैप्टर लिखे जाते हैं जैसे। तो इस तरह वो आपके लिए आसान हो जाएगा, आर के अंदर मुख्तलिफ शीटें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट्स, रिसर्च स्टेशनों का डाटा बहुत बड़े बड़े डाटा, 50-50 साल का डाटा, लेकिन आप 2 सालों में उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो हम आर के अंदर एक ही शीट पे उसको कर सकते हैं। डॉक्टर वरदान साहब, मेरा पॉइंट आपने पिक किया, तो ये आपके हिसाब से आप एमफिल में जैसे कर रहे हैं, इधर भी आपके पास ये शीटें बनी हुई हैं, वो ग्राफ के लिए अलग शीटें, स्टैट के लिए अलग शीटें। डॉक्टर वरदान साहब थोड़ा सा रिपीट करेंगे आपने क्या कहा? जी सर, आपने जैसे बताया कि इसमें मतलब डाटा को जो है ना मैनेज करना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि हम हर पर्पज़ के लिए अलग अलग शीट हम उसको फॉर्म करें, उसको अरेंज करें। तो उसकी बजाय हम इसके अंदर ही सारी चीज़ें हम जो है ना इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो हाँ ये इस काम हमारा जो है ना वो एंड पे आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपके पास एक ही शीट के अंदर मुख्तलिफ शीटें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ग्राफ के लिए, स्टैट के लिए, डाटा को। सुपरवाइजर कहता है ये पैरामीटर निकाल दो, तो हम आर के अंदर उसको पैरामीटर कमांड देंगे, वो निकल जाएगा। वो आपके पास उसको डिलीट करने की शीट में से जरूरत नहीं है। कोई सुपरवाइजर कहता है ये वैल्यू आउटलायर्स है, ये वैल्यू मतलब सही नहीं है, तो इसको आउट करना है, तो वो आर के अंदर कमांड दे, वो हट जाएगी, ना कि उस वैल्यू को एडिट करें, चेंज करें। शायद आपको 2-3 सालों बाद पता चले जो वो वैल्यूज आई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बाद में, तो वो आपका ओरिजिनल डाटा ओरिजिनल हालत में सेव रहेगा हमेशा, उसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये सबसे मतलब हमारे जो स्टूडेंट पाकिस्तान में हमने फील किया है, ये बहुत बड़ा मसला है स्टूडेंट्स के लिए डाटा के हवाले से। ओके, तो इस पॉइंट पे तो हम दोबारा पीपीटी पे चलते हैं। तो ये आपके पास एक चीज है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि
थोड़ा सा शुरू में तो आपके पास जो क्वालिटी आपकी पब्लिकेशंस है वो आर के अंदर जो हम वर्क कर रहे हैं 2018 से, उसमें आप अपने पेपर्स वगैरह की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप देखेंगे जो ग्राफ हमने इस पे बनाए हैं, ये रिसर्च पेपर हमारा अब शो हो रहा है, एग्रोनॉमी चैनल का एक रिसर्च पेपर है आपके पास। रिसर्च पेपर नजर आ रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, तो ये हमने एक अमेरिकन सोसाइटी का बहुत बड़ा जर्नल है, उसमें हमने ये पेपर पब्लिश किया। इसमें मैंने आपको दिखाना है कि ये सिंपल सी स्टडी है, 2 साल की स्टडी है, कोई हमने यहाँ पे की है, इतनी बड़ी स्टडी नहीं है मतलब, लेकिन इसकी जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आप देखें आर के हवाले से। ये देखें आपके पास एक वेदर डाटा का आपको ग्राफ आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यस सर। तो ये देखें आपके पास वेदर डाटा को हमने आर के अंदर प्रेजेंट किया। आपने दूसरे पेपरों में देखा होगा वेदर डाटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्वालिटी ऑफ फिगर्स आपके पास, क्वालिटी आपके पास, ये ग्राफिक क्वालिटी की वजह से मतलब देखें कि अगर आप जो मैसेज देना चाहते हैं अगर वो आपका वेरी क्लियर है, तो जर्नल के लिए ये आसान हो जाता है कि आपके पेपर्स पब्लिश करना, उसका मैसेज आपको वहां से नजर आ रहा है। तो जब हम अपनी मतलब हम काम बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं दे सकते हैं, उस हवाले से मतलब हमारे बड़े जर्नल्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहले जो एडिटर और रिव्यूअर देखते हैं वो आपके पेपर्स, टेबल्स और ग्राफिक क्वालिटी देखते हैं। अगर वो क्वालिटी अच्छी है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उसको इजीली पब्लिश करेंगे। अगर हम अपना डाटा तो बहुत सारा है, इतना हमने 4-5 साल काम किया, लेकिन हम उसकी प्रेजेंटेशन किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के, अब आर के अंदर जो एनालिसिस आप उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आर पे देते हैं, तो आर दुनिया में रिलायबल एक चीज है। तो आपके पास जब आर के अंदर आपकी चीज दी गई होगी या उसको क्वालिटी भी नजर आ रही होगी फिगर और ग्राफिक में, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पब्लिकेशंस के। तो इसलिए आर का यूज आप दुनिया, यूएसए में, जर्मनी के अंदर, जैसे आप बता रहे हैं आप लोग, इस तरफ जा रही है। हम मैनुअल चीज़ों में या वो सॉफ्टवेयर्स में काम कर रहे हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उस वजह से पब्लिकेशंस हमारी बड़े हर्डल होते हैं। वो डाटे को हम नहीं समझ सकते, डाटे को हम मैनेज नहीं कर सकते, उस वजह से मतलब हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन वीक है। तो आर के अंदर इंशाल्लाह आप ये सारी चीजें देखेंगे, ग्राफों को बनते देखेंगे, डाटे को हमने मतलब इस ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली हमने 3 चीजें करेंगे। सारे 5 दिन के डाटे को अंडरस्टैंड कैसे करना है आपने, डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करना है, और तीसरे नंबर पे आपके पास आपने ग्राफ वगैरह कैसे बनाने हैं। तो इन चीजों के अंदर ही हमारी सारी ये 5 दिन की ट्रेनिंग इसी के अंदर ही मूव करेगी। ओके, तो ये आपके पास डाटा मैनेजमेंट इंतहाई जरूरी है मतलब आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीपीटी नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो पीपीटी किसी को नजर ना आए वो माइक ओपन करके बता सकता है हमें कि आपके पास के उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम हमने नोट किया कि वो है डाटा अंडरस्टैंडिंग करना। अगर ये मतलब वीडियो लिंक ब्रेक हो जाए तो आप दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं बाजू का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लार्ज माइक। Okay. First of all, the problem we have seen that the difficult to understand large data. Our student cannot manage a large data, or they have different Excel sheets. So that is the main problem with the data management. Second one is the missing value. Sometimes our data has missing value 1 or 2, 3. तो बात बात आपने ये देखा कि हमारे डाटा में कोई चीज, कोई आपकी रेप्लिकेशन ब्रेक हो गई या आपके रेप्लिकेशन का डाटा नहीं आ सका, या कोई पॉट एक्सपेरिमेंट था, एक पॉट खराब हो गया, तो उसमें आपके पास उस डाटा नहीं है। अब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर आप जब डाटा इंजेक्ट करते हैं तो वो कहता है इसमें मिसिंग वैल्यू, आपका डाटा कंप्लीट नहीं है, तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकता आपका सॉफ्टवेयर, तो आपको फर्जी डाटा या उसमें कोई एडिटिंग करनी पड़ती है। जबकि आर के अंदर हम मिसिंग वैल्यू आर इसको डील कर लेता है। उसमें कोई अगर आपका 4 एप्लीकेशन थी, आपके पास 3 एप्लीकेशन का डाटा है, एक एप्लीकेशन किसी वजह से नहीं हो सका, तो आर उसको डील कर लेता है आपकी मिसिंग वैल्यू को। तो आर में ये सबसे बड़ी खूबी है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कोई आउटलायर्स आपके डाटे में है, आपके पास एक वैल्यू 2, 3, 4 आ रही थी, एक वैल्यू 50 पे चली गई, तो ये आपके पास आउटलायर्स है, ये किसी गलती, ह्यूमन एरर है, इंस्ट्रूमेंट का एरर है, किसी वजह से आपके पास डाटा आउट ऑफ रेंज है। उस वैल्यू को आपने कैसे डील करना है, आर के अंदर मैंने बताया हम कमांड के जरिए, चीजों के जरिए आपके पास उसमें देख लेंगे उसको। लेकिन नॉर्मल रूटीन में क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं या डिलीट करते हैं, वो ओरिजिनल डाटे को आप छेड़ देते हैं आपके पास। तो आर के अंदर आप आउटलायर्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं आपके पास। और दूसरा, इसमें स्टैट लगाने के बहुत ज्यादा मॉडल अवेलेबल हैं। आप इसीलिए कोई भी मॉडल आपके जो डाटे को सूट करता हो वो आप इसमें से लगा सकते हैं आपके पास। ओके, तो हम देख रहे थे कि मतलब पहला इशू है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लार्ज डाटा। हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होता है, उसको अरेंज करना, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे आम रूटीन में डिफिकल्ट होता है। दूसरे नंबर पर आपके पास मिसिंग वैल्यूज, हमने जैसे डिस्कस किया कि आपके डाटा में मिसिंग वैल्यूज हैं कुछ आपके पास, वो अगर बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर वो उसको एरर देगा, आपके पास सॉफ्टवेयर उसको आगे एनालिसिस की तरफ नहीं लेके जाएगा, लेकिन और आपके पास उस वैल्यू को डील कर लेगा। आपके पास आउटलेयर्स, आपके पास कुछ वैल्यूज आउट वैल्यूज आ जाती हैं, आउट ऑफ रेंज आ जाती है आपके पास, उसमें उसको बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। तो लेकिन आर इसको इजीली आपके पास हैंडल कर सकता है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ राइट मॉडल। आपके पास बहुत सारे आर के अंदर मॉडल अवेलेबल हैं जो आपके स्टैट के हवाले से आपके पास
ग्राफिक के हवाले से आप उसको यूज कर सकते हैं आपके पास। तो आप राइट बहुत सारे मॉडल चॉइसेस आपके पास है। और क्वालिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, जैसे मैंने आपको अपना पेपर शो कराया, उसमें हमने आपकी टेबल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, जिस तरह उस पर स्टैट लगी हुई है, और आपके पास ग्राफिक क्वालिटी आपके पास। ओके, तो ये आपके पास मेन चीजें आपके पास हैं। तो इसके अलावा कोई पॉइंट डाटा मैनेजमेंट में किसी के जहन में कोई चीज हो कि उसको वो चीज मुश्किल नजर आती हो? इसके अलावा कोई डिफिकल्ट टू डाटा अंडरस्टैंड, मिसिंग वैल्यू, आउटलायर, सिलेक्शन ऑफ द राइट मॉडल एंड क्वालिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल एंड क्वालिटी ऑफ ग्राफिक। बस हमने ये देखा कि आपके पास स्टैटिस्टिकल क्वालिटी और ग्राफिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये मेन डाटा मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है जिनको आर इजीली हैंडल कर लेता है आपके पास। ओके, तो आर सॉफ्टवेयर आपके पास ये एक आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास। तो इसको दो साइंटिस्ट रॉस और रॉबर्ट आपके पास ये स्टैटिस्टिशियन थे। 1992 से आपके पास ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है आपके पास, दुनिया के अंदर ये डेवलप हुआ आपके पास। इसके अंदर मैंने जैसे बताया बहुत सारे आपके पास मॉडल अवेलेबल हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे पैकेजेस हैं आर के अंदर आपके पास, हर आपके पास जो भी आपका फील्ड है उसी फील्ड के लोगों ने इसमें पैकेज डेवलप किए हुए हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको पहले नजर आती है। ये जैसे हम ऐसे ऐसे चलेंगे आप देखेंगे इसमें। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास इस वक्त दुनिया के अंदर? ये 19 या 20 आपके पास टॉप सॉफ्टवेयर्स हैं, और आर इस वक्त इनके टॉप पोजीशंस पे इस वक्त वर्क कर रहा है आपके पास एज ए प्राइमरी टूल, एज ए सेकेंडरी टूल, फ्रीक्वेंटली एंड ओकेजनली यूज। तो दुनिया आपके पास आप जहां भी जर्नी यूएस वगैरह की तरफ जाएंगे, जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही है, जितनी भी हो रही है, उसमें ज्यादा मैक्सिमम जो लोग सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं आपके पास, आर सॉफ्टवेयर की तरफ, उसमें दुनिया मूव कर रही है आपके पास। उसके बाद कुछ चीजें आपके पास ये कि आर क्या, क्यों हम आर को प्रेफर कर रहे हैं आपके पास। सबसे पहली चीज तो आपके पास ये है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें एक आपको रुपया नहीं चाहिए। आपको पास वर्जन, प्रीवियस वर्जन और आपके पास करंट वर्जन और आने वाले तमाम वर्जन आपके पास आर फ्री सॉफ्टवेयर है, जबकि बाकी सॉफ्टवेयर आपके पास इंतहाई कॉस्टली है। ना हमारा स्टूडेंट परचेज कर सकता है, इवन ना हमारी फैकल्टी उनको परचेज कर सकती है आपके पास। उसके बाद दूसरा टाइम एफिशिएंट है आपके पास। जैसे होता है मतलब शीटों की जरूरत नहीं है, आप एनालिसिस एक दफा आप कोड डेवलप कर लें आपके पास इजीली, तो आप वही कोड आपके पास सेम डाटा के लिए, आपके पास प्रोजेक्ट डाटा एक साल के एनालिसिस के लिए आपने यूज किया, दूसरे साल आएगा तो सिर्फ आपको वही कोड रन करने। एक दफा कोड बन गया है तो आपके पास वो आप इजीली 2 मिनट में लॉन्ग एनालिसिस कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये टाइम एफिशिएंट है। तीसरे नंबर पर इसकी मतलब पब्लिकेशन क्वालिटी, जैसे मैंने आपको शो कराया, ग्राफिक क्वालिटी, स्टैटिस्टिकल टेबल की क्वालिटी, वो इंतहाई ज्यादा है। तो इसको यूज करते हुए आप अपनी पब्लिकेशन क्वालिटी, अपने पेपर्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं आपके पास। उसके बाद में वन एक्सेल शीट, मैंने आपको जैसे बताया कि आपको मल्टीपल एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी काम करना है एक ही शीट के अंदर, आपने डाटा को समझना भी है, डाटा को आपके पास स्टैट भी उसी पे लगेगी और उसी पे आपके पास ग्राफ बनेंगे। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज का, जैसे मैंने बताया आपके पास कोई भी वैल्यू मिसिंग है और उसको इजीली हैंडल कर लेता है आपके पास। उसके बाद लिटरेचर अवेलेबिलिटी है, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल मिलेंगे, आपको बहुत सारी कम्युनिटीज मिलेगी सिखाने के लिए, बहुत ज्यादा किताबें मिलेंगी। आर सॉफ्टवेयर अंदर जितना भी बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल है, मेरे ख्याल में नहीं किसी और सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल हो। इसमें काफी ट्रेंड लोग मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मौजूद है, वेबसाइट्स मौजूद है। आप कोई भी कोड आपने मीन कैलकुलेट करना है, आप उस पर लिखेंगे कि मीन चाहिए, तो वहाँ आपके पास कोड बने बनाए आ जाएंगे, डाटा के एग्जाम्पल के साथ आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है। तो आर को आपको एक दफा बेसिक समझनी है, बाकी इंशाल्लाह जैसे देखेंगे दुनिया में सारे के सारे कोड अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स में बहुत सारे आप देखेंगे वर्किंग करें, आपको डाटा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, आपको डाटा मतलब ग्रेटर देन चाहिए, स्मॉलर देन चाहिए, दो आपको पास यहाँ से लेकर वहां तक चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स का इसमें यूज है तो आर के अंदर। उसके बाद ऑलवेज अपडेटेड है आपके पास, इसमें 99 आपको कोई भी पैकेज फंक्शन चाहिए, आपने ये एनालिसिस करना है तो आपको आर के अंदर वो 99% चांस है वो चीज मिलेगी, जबकि बाकी सॉफ्टवेयर अंदर शायद वो चीज आपको ना मिले। इसमें दुनिया डेली बेसिस पे काम कर रही है और नए से नए फंक्शन, और मैथ में चाहिए आपको, बायोलॉजिकल साइंसेस में चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में, जीन में चाहिए, तो सारे आपके पास इसमें सारे के सारे फंक्शन आपके पास क्या है, अपडेटेड आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है, टाइम एफिशिएंट है, पब्लिकेशन क्वालिटी बेहतर है, एक एक्सेल शीट आपको चाहिए, मिसिंग वैल्यू को ये डील कर लेता है, लिटरेचर अवेलेबिलिटी है, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकता है आपके पास। तो कोई शख्स इस चीज को रिपीट करेगा आर की इंपॉर्टेंस के हवाले से आपके पास कि आर सॉफ्टवेयर क्यों सीखना जरूरी है या बाकियों की निस्बत ये क्यों एफिशिएंट है? डॉक्टर इशरत, कैन यू प्लीज रिपीट इट? यस। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा है कि आपने इसको कंपैरेटिवली करवाया दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। सबसे पहला एडवांटेज कि अगर कोई रेप्लिकेट वैल्यू मिस हो जाती है तो ये आउटलायर है तो ये एडजस्ट कर देता है। लिटरेचर रिव्यू बहुत सारे इंटरनेट पे इसके लिए अवेलेबल है, फ्री सॉफ्टवेयर है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इसमें स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा CSV फाइल बन जाती है जो कि एक पेज पे डाटा को प्रेजेंट करती है। गुड। आवाज आई? जी जी जी, आ रही है। डॉक्टर तारिक, कैन यू प्लीज रिपीट कि क्यों इंपॉर्टेंस है, व्हाई आर इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा,
एक तो ये कि आर मॉडर्न है और ये रिसेंट है, 1992 के बाद डेवलप हुआ है, और इसके तमाम पैकेजेस जो आप और कोड्स जो आप इसके इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो एक मरतबा अगर आपके पास सेव है तो फिर वो आपके पास लॉन्गर टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसकी कमांड्स और बाकी जितनी भी चीज़ें वो आप एक सिंगल शीट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, और ये फ्री भी है। यस, मतलब इस हवाले से हम डॉक्टर सैफ रहमान, कैन यू प्लीज कंट्रीब्यूट सम? यस सर, ये जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, एक तो ये है कि ये जो है ना एडवांस फॉर्म है। जैसे पहले हम डिफरेंट वर्क स्टैटिस्टिक्स का करना है, मिनी टैब पे है, एसपीएसएस पे है, उसके साथ ये आर है। इसके अंदर कमांड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसके अंदर एडवांसमेंट वो इस सेंस में है कि जितने भी इस सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स हैं या इस फील्ड से जो है रिलेटेड हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के, तो वो डिफरेंट कीज जो है बन रही हैं डेली बेसिस पे, तो वो इसके अंदर जो स्टोर हो रही हैं। और इसके ट्यूटोरियल और बाकी इसके हवाले से जितनी भी जो है ट्रेनिंग्स हैं वो आपको जो है मिलती रहती हैं। ये इतना थोड़ा सा एक दफ़ा जो अंडरस्टैंडिंग का है, वन टाइम अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए आगे फर्दर इसमें मज़ीद जो है लर्निंग बहुत आसान हो जाती है। इट मीन्स ये जो है रिप्लेस कर रहा है जो और सॉफ्टवेयर हैं उनको, और एक ही सॉफ्टवेयर में आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही मतलब यही चीज़ है। इसी वजह से दुनिया आ रही है, फ्री भी है, अपडेटेड भी है, लिटरेचर भी अवेलेबल है। तो इन हवाले से मतलब इस चीज़ की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, और मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ये 5 दिनों के बाद जो मेन चीज़ खौफ है ना इसका, वो खत्म हो जाएगा आपके पास। कि जैसे हम पाकिस्तान में कोड के हवाले से, चीज़ों के हवाले से हम देखते हैं ना, काफ़ी मुश्किल इसको प्रेज़ेंट किया जाता था। तो शुरू में जब हम भी सीख रहे थे 5-6 सालों पहले, तो उस वक़्त हमें भी ये पता नहीं लगता हम कहाँ फँस गए हैं। मतलब जो हमने पहले शुरू में इसकी क्लासेस ली यूएसए के अंदर, तो वो भी हमारे लिए इस तरह मुश्किल था। और जो वो समझाया जाता है या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो भी बड़ी मुश्किल मतलब उसको यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे कि ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस दरकार है उसमें, ये नो डाउट ये चीज़ है। लेकिन आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी कि ये मतलब कैसे कमांड्स हैं, कमांड के अंदर क्या चीज़ है, फंक्शन क्या है, पैकेज क्या है, इसकी बुनियादी बेसिक हैं क्या। तो डॉक्टर वरदान थोड़ा-सा आप करें, फिर हम आगे चलें। थोड़ा-सा हम इसलिए ऐसा-ऐसा चल रहे हैं ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें। बाज़ औक़ात मेरी बात समझ नहीं आती, शायद आपकी ज़्यादा वज़ाहत से समझ आ जाए। तो इस तरह हम थोड़ा-सा अपने दोस्त हैं सारे माशाल्लाह। जी, जी। सर आपने जैसे बताया कि सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कि फ्री है, और ये वाला वर्जन भी फ्री है, नेक्स्ट जो अपडेटेड आएंगे वो भी फ्री हैं, तो इसके लिए हमें जो स्टूडेंट के लिए एक्सेस इसकी ईजी है। दूसरी हाँ, बात सर बिल्कुल। आपने जैसे टाइम एफिशिएंट है, और उसके बाद सर इसके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज को एडजस्ट करने की इसके अंदर कैपेसिटी है, आउटलायर्स को बड़ी अच्छी तरह ये हैंडल कर सकता है, और इससे रेलेवेंट लिटरेचर जो है वो काफ़ी अवेलेबल है, जो हमें ऑनलाइन सोर्स से किसी भी से भी गूगल करके हम हेल्प ले सकते हैं किसी भी कोर्स से रेलेवेंट। तो वो हुँ। हम जो है वो इजीली इसमें अपना डाटा जो है दूसरे सॉफ्टवेयर की निस्बत इजीली इसमें हम इसको मैनेज कर सकेंगे। हाँ, बिल्कुल सर। तो ये हमारे पास बेसिक ये कुछ इसके पॉइंट, इसके अलावा भी हज़ारों पॉइंट इसके पॉजिटिव पॉइंट होंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है आपके पास ये चीज़ है। सबसे गरीब मुल्कों के लिए सबसे फ्री अवेलेबिलिटी सबसे अहम है मेरे ख्याल में, तो इसके हवाले। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये इसकी इंस्टॉलेशन है कुछ आपके पास। जिसने इंस्टॉल नहीं किया वो आज कोशिश करेंगे इसको इंस्टॉल कर लें। अगर किसी को प्रॉब्लम आएगा तो हम कल इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करके उसकी इंस्टॉलेशन भी करवा देंगे। तो साथ-साथ आप करते जाएँगे, तो वो काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। समझते भी जाएँ और इसको थोड़ी-सी प्रैक्टिस में भी लेकर आएँ, तो मज़ीद चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी आपके पास। तो आपने इंस्टॉल करना है, एक आपके पास आर है, तो जो बैकग्राउंड में वर्क करेगा, और आर स्टूडियो जो है मेन, आप उस पे कमांड्स राइट करेंगे और सारे फंक्शन उस पे आएँगे आपके पास। तो आपने आर इंस्टॉल। जी, 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा, जी। डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बाकियों को नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? वरदान साहब? यस सर, नज़र आ रही है स्क्रीन। यस। यस, डॉक्टर साहब दोबारा ज़रा वरदान साहब, जिनको नज़र नहीं आ रही थोड़ा-सा दोबारा लिंक को, ये तकरीबन लोगों को नज़र आ रही है सर। नज़र आ रही है वरदान भाई ये किसी को? डॉक्टर सफर रहमान साहब यस सर, वी आ कैन रही है सी सर? योर स्क्रीन। यस सर, ओके, आ रही है ना। ओके, ओके। वरदान साहब आपको नज़र आ रही है आप? जी सर आ रही है नज़र। ओके, ओके। तो आपके पास एक आर को इंस्टॉल करेंगे, उसके पास आर स्टूडियो है। तीसरा आपके पास एक मिक टेक्स है आपके पास। तो मिक टेक्स आप आर करें तो ये आपके पास पीडीएफ ग्राफ वगैरह अगर आपने लेने हैं तो वो पीडीएफ में दे रहे हैं। तो ये तीसरी फाइल भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद प्रीवियस रिलीज के सारे इस लिंक पर अवेलेबल है आपके पास। ये सारे मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये लिंक्स, और ये पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा एट द एंड। तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको सारी शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह वो। तो ये आपको प्रीवियस वर्जन, बात का ऐसा होता है कोई फंक्शन आपके पास या कोई पैकेज आपके करंट वर्जन में इंस्टॉल नहीं हो रहा होता, या कुछ फंक्शन आपके पास करंट वर्जन में नहीं आ रहे, तो बाज़ औक़ात आपने प्रीवियस वर्जन में जाके उसको इंस्टॉल करके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। बाज़ पैकेज हैं, कोई फंक्शन आपके पास करंट वर्जन में शायद परफॉर्म ना हो, या वहाँ पे आपके पास ना हो, तो इसके लिए आप प्रीवियस वर्जन को, आप बाज़ लोग कुछ प्रीवियस वर्जन को ईज़ी समझते हैं तो वो वही इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो आपके पास ये सारे प्रीवियस वर्जन इसके इसी पे अवेलेबल है। तो करंट वर्जन आप जो फर्स्ट लिंक है उस पे अवेलेबल है। तो ये आप इस तरह आप अपने लैपटॉप के अंदर आप इसको आर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब ये 4 विंडोज नजर आ रही हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड। यस सर, नजर आ रही है। ओके, जब आपके पास आपने आर को इंस्टॉल कर लिया आपके पास, तो आर स्टूडियो जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको 4 विंडोज नजर आएंगी। विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4। तो आर इन चारों विंडो के अंदर परफॉर्म करता है आपके पास। ये चारों विंडो आपके पास परफॉर्म हो रही होती हैं आर के अंदर। आर इनमें वर्क कर रहा होता है आपके पास। विंडो 1 जो आपके पास है एक्चुअली इसमें आप कमांड्स को राइट करते हैं आपके पास। यहाँ पे कमांड सारी लिखी जाती है आपके पास। यहाँ आपने अपनी कमांड्स को आपने राइट डाउन करना है। विंडो 1 के अंदर आपने जहाँ कमांड्स अपने राइट करेंगे और ये कमांड यस यस जी जी सर वो तारिक जमील कह रहे हैं कि आप मुझे अलाउ करें, मैं फिर मीटिंग ज्वाइन कर सकूंगा। वो परमिशन मांग रहे हैं उनकी तरफ से। ओके ओके, मैं चेक करता हूँ। यस ओके, एक मिनट सर, तारिक सर ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तारिक साहब आपको हमारी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी, नजर आना शुरू हो गई जी। ओके, तो आप जब आर स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे आपके पास, वो पहले आर से इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आर स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास ये 4 विंडो डिस्प्ले हो जाएंगे उसके अंदर आपके पास। तो विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 और विंडो 4 आपके पास। विंडो 1 एक्चुअली ये है कि आप यहाँ पे अपनी सारे कोड्स वगैरह जो कमांड्स आपके पास लिखते हैं वो विंडो 1 आपके पास है। और विंडो 2 आपके पास है, ये आर का माइंड है, ब्रेन है आपके पास। जो विंडो 1 में आप कमांड राइट करेंगे, यानी आपने आर को बता दिया x इज इक्वल टू 1, तो आर आप उसको सेव कर लेगा माइंड के अंदर विंडो 2 के अंदर, कि x उसको पता चल जाएगा कि ये 1 के बराबर है। जब x + 2 लिखेंगे तो वो उसका आंसर देगा 3, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 उसके माइंड के अंदर सेव है। तो जो आप कमांड से रन करते जाएंगे वो इस माइंड के अंदर सेव करता जाएगा। और विंडो 3 में ये कमांड्स को रन करता है। अगर ये ब्लू कलर में रन करेगा तो आपकी कमांड सही है। अगर रेड में आपको एरर देगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि एरर है कि आर आगे नहीं मूव कर रहा है या कमांड के अंदर कोई मसला आपके पास आ रहा है। तो विंडो 3 के अंदर या कमांड सक्सेसफुली रन होगी आपके पास, या आपके पास क्या होगी, आपके पास उसमें जो भी एरर है वो आपके पास विंडो 3 में शो हो जाएगा। विंडो 4 आपके पास 2 चीजें हैं विंडो 4 के अंदर। एक आपके पास पैकेजेस हैं, जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल होंगे वो विंडो 4 के अंदर आपके इंस्टॉल होंगे। और विंडो 4 के अंदर आपको ग्राफ भी नजर आएगा। जब आपके पास ग्राफ आपके पास यहाँ पे शो होगा, विंडो 4 के अंदर क्या होंगी, 2 चीजें, एक पैकेज आपके पास आएंगे यहाँ पे। दूसरा आपके पास हम पैकेज नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि पैकेज आर के अंदर हम पैकेज से क्या मुराद लेते हैं, या पैकेज क्या चीज है आपके पास। तो एक पैकेज इंस्टॉल होगा आपके पास। दूसरा आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपको ग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास। तो इन 4 विंडो के अंदर टोटल आर ऑपरेट करता है। तो विंडो 1 के अंदर आप कमांड्स को लिखते हो, विंडो 2 उसका माइंड है, ब्रेन है, जिसमें वो सारी चीजें सेव करता जाता है। और विंडो 3 के अंदर आपके पास उसकी कमांड या सक्सेसफुली रन होगी, या उसका एरर जो भी डिस्प्ले होगा वो विंडो 3 के अंदर डिस्प्ले होगा। विंडो 4 के अंदर मैंने बताया आपको 2 चीजें होंगी। एक आपके पास आल पैकेज, जो लाइब्रेरी आर की हम इसे कहते हैं, ये लाइब्रेरी है जहाँ पे आर के सारे पैकेज रखे हुए हैं, यानी किताबें सारी जो आर इस्तेमाल करेगा, जो चीजें इस्तेमाल करेगा, वो आर की लाइब्रेरी आपके पास पैकेजेस की सारे पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। और इसके बाद दूसरा इसमें ग्राफ डिस्प्ले होंगे आपके पास विंडो 4 के अंदर। तो ये 4 विंडो किसी को समझ आई हो तो हमसे जरा शेयर करेगा। यस, नूर मुजम्मिल साहब, कैन यू प्लीज शेयर अबाउट 4 विंडोज? यस सर। जी जी सर देयर आर फोर विंडोज हमारे पास हैं आर की। और उसमें विंडो 1 जो है वो सर रिकमेंड करेगी जहाँ पर हमने अपने कोड्स या कमांड्स को जो है ना हमने राइट अप करना है। बेसिकली जो हमारी स्क्रिप्ट होगी वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। सेकंड वन पर हमारे पास विंडो 2 जो है इसका आर का ब्रेन कह सकते हैं, माइंड है हमारे, हम कह सकते हैं कि विंडो 1 में जितने भी हम अपनी कमांड्स कोड्स या स्क्रिप्ट जो है वो राइट अप करेंगे वो यहाँ पर जो है वो सेव होती चली जाएगी विंडो 2 में। इसी तरह लाइकवाइज हमारे पास विंडो 3 हमें बताएगी कि हमारा जो कोड है, स्क्रिप्ट है, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो वो ब्लू कलर में रन हो रहा है तो इट मीन्स के सक्सेसफुल है। और अगर रेड कलर शो हो रहा है तो इट मीन्स के वो जो कोड है या जो स्क्रिप्ट है या जो उसका रनिंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर, फेलियर आ रहा है। और विंडो 4 हमें जो है शो करेगी कि जो हमारे पास पैकेजेस जो हमने इंस्टॉल करने हैं अपने कमांड को, अपने स्क्रिप्ट को जो है फॉलो अप करने के लिए, या जो ग्राफ वगैरह हम बनाएंगे वो हमें ग्राफ वगैरह भी विंडो 4 में ही शो होंगे। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर वरदान, कैन यू प्लीज डिस्कस दीज 4 विंडोज?
ये सर विंडो 1 जो है उसमें सर हम अपना स्क्रिप्ट राइट करेंगे, जो कमांड या कोड हमने रन करना है। और विंडो 2 जो है उसके अंदर चीज़ें सर सेव हो जाएंगी कि जो हमने विंडो 1 में उसको रिकमेंडेशन की थी वो विंडोज 2 में सेव होती जाएंगी। और विंडो 3 में सर जो जो हम कमांड विंडो 1 में हमने रन की थी उसकी आउटपुट जो है, जो पैकेज हमने रन किए थे वो विंडो 3 में शो होंगे। और विंडो 4 में सर पैकेजेस इंस्टॉल होंगे या हम कोई ग्राफ वगैरह जो बनाएंगे वो इसमें शो होंगे। यस, तो ये हमारे पास 4 विंडो का इंट्रोडक्शन है। जस्ट जब आप आर स्टूडियो ओपन करते हैं तो हमारे ये 4 विंडोज में आर ऑपरेट करते हैं। विंडो 1 में आप कमांड्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद आप विंडो 2 वो अपने ब्रेन में वो सारी चीजें सेव करता जा रहा है। विंडो 3 में आपके पास कमांड या सक्सेसफुली रन होंगी, जो उनका आउटपुट आएगा या वो उसमें एरर आएगा तो वो विंडो 3 के अंदर आपको नजर आ जाएगा। विंडो 4 के अंदर 2 चीजें आपके पास में पैकेज इंस्टॉल होंगे और उसके बाद आपके पास इसमें ग्राफ डिस्प्ले होंगे आपके पास। तो ये आपके पास है। तो थोड़ा सा पैकेज और फंक्शन के कंसेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। बड़ी ये पुरानी मिसाल है जो मैं अक्सर स्टूडेंट को देता हूँ क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ के साथ वाबस्ता है। अच्छा, आप ये देखें ना कि हम मोबाइल्स में, अब मैंने एक नया मोबाइल परचेज किया है, उसमें मैं व्हाट्सअप कॉल करना चाहता हूँ आपके पास। तो क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? डॉक्टर सैफ रहमान, क्या मैं उसमें कोई कॉल कर सकता हूँ? जब आपके पास एक मेरे पास नया मोबाइल, मैं उसे कहता हूँ वीडियो कॉल मुझे करनी है, तो वो मुझे अलाउ करेगा या नहीं करेगा? नो सर, उसमें आप ऐसे वीडियो कॉल नहीं कर सकते जब तक कि कोई उसमें स्पेसिफिक उसके लिए ऐप ना हो हाँ, सॉफ्टवेयर, जैसे आपने हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, यही बात बिल्कुल आपकी सही है। देखिए ना, जैसे आप मोबाइल्स में आप एक काम नहीं कर सकते, यानी एक आप मतलब कॉलिंग या वीडियो कॉल का फंक्शन हम नहीं कर सकते। तो आर के अंदर भी इसी तरह आप कोई फंक्शन, कोई काम मीन निकालना है, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करनी है, कोई ग्राफ बनाने हैं, तो आर भी आपसे माजरत कर लेता है कि आपके पास, कहते हैं मेरे पास तो इसका वो पैकेज ही नहीं है। मतलब आप जैसे मोबाइल में उसको एप्लीकेशन कहते हैं, आर की लैंग्वेज में हम उसको पैकेज कहते हैं आपके पास। तो जब तक हम उसको कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो आपके पास वो कोई भी फंक्शन काम नहीं कर सकता आपके पास। तो ये देखें, आपके पास व्हाट्सअप, एक आप इस मिसाल को लेकर, व्हाट्सअप आपके पास एक पैकेज है और जो इसका वीडियो कॉल है इसका ये फंक्शन है। तो आर के अंदर भी यही चीज सेम है कि आप पैकेज इंस्टॉल करें तब आप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बास लोगों को यही सबसे बड़ा मेन एरर आ रहा होता है, जब वो कोई काम करें तो सर ये एरर आ रहा है, आर ये कहता है सॉरी आई कुड नॉट फाइंड दिस फंक्शन, कि मेरे पास ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? उसमें पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो आपने आर यूज करने से पहले काम करना होता है तो वो आपने पैकेज इंस्टॉल करना होता है। तब आप कोई भी काम, आप इंपोर्ट करनी है, फाइल एक्सपोर्ट करनी है, कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको पैकेज दरकार होता है। आपके पास पैकेज होगा तो आपका फंक्शन परफॉर्म होगा आपके पास। तो ये कंसेप्ट इंतहाई जरूरी है। सबसे बड़ी एरर जो शुरू शुरू में स्टूडेंट फंस जाते हैं वो इसी चीज में फंसते हैं कि वो एरर दे रहा होता है बेचारा कि मेरे पास ये फंक्शन नहीं है। तो जब भी फंक्शन का आपके पास एरर है, कुड नॉट फाइंड दिस फंक्शन, तो आप ये अंडरस्टैंड कर जाएं आर के अंदर कि उसका आपके पास पैकेज नहीं है, तो आप उसको पैकेज को इंस्टॉल करेंगे आपके पास। तो डॉक्टर इसरात, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड फंक्शन? पहले तो ये पैकेज और फंक्शन है क्या चीज, और इन दोनों का आपस में राब्ता क्या है, लिंक क्या है? यस डॉक्टर इसरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी देखिए जी। सर, या आर की पैकेज इंस्टॉलेशन अगर ना हो तो हम अपनी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप किसी के मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं है तो वो वीडियो कॉल नहीं कनेक्ट कर सकता, या मैसेंजर नहीं है तो मैसेंजर से भी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो सकती। तो ये फंक्शन उस वक्त तक परफॉर्म नहीं हो सकते जब तक इसकी पीछे बेसिक प्रोग्रामिंग मौजूद ना हो। ओके, तो डॉक्टर तारिक साहब, थोड़ा सा इसको, बड़ी मेन चीज है ये, सबसे आर के अंदर में बुनियाद आपकी, ये मैं बेसिक क्वेश्चन आपकी बुनियाद बना देनी है इंशाल्लाह। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है आर को, आर की तरफ जाने से पहले कि हम पैकेज और फंक्शन को समझ सकें। जी जी तारिक अस्सलाम वालेकुम साहब। जी। जी जी सर सर। अच्छा, फंक्शन तो उसकी मतलब कि वो काम है जो आप आर से लेना चाहते हैं। तो लेकिन बिल्कुल। डेफ़िनेटली कोई काम आपने करवाना है तो उसके लिए उसकी उसकी कोई ऐप आपके पास होनी चाहिए, जिस तरह फ़ोन के लिए या किसी कंप्यूटर के लिए आपको उसका प्रोग्राम चाहिए होता है। तो इस तरह इसका एक पैकेज है जो कि आपने इसके अंदर इंस्टॉल करना होता है। हाँ बिल्कुल सर, वो तो वो आप पहले पैकेज इंस्टॉल करेंगे तभी आप आर से कोई काम ले सकेंगे। अगर पैकेज नहीं है तो आर सॉरी कर देगा, वहीं पे आपके पास रुक जाएगा आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं कि आपके पास, अच्छा अब आपके पास जब आप फोन परचेज करते हैं तो क्या होता है आपके पास? कुछ चीजें आपके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं, जैसे कॉल करने के ऑप्शन है, मैसेज करने के ऑप्शन है आपके पास जीमेल वगैरह ये ऑलरेडी उस कंपनी की मलकियत होता है, वो उसमें इंस्टॉल कर देता है। लेकिन कुछ चीजें आपके पास जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सारी चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं आपके पास, ये चीजें नहीं होती। तो आर में भी सेम इसी तरह होता है कि जब आप आर स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, जब आप विंडो 4 में की लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी कि पैकेजेस होंगे वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। लेकिन जो जिस तरह थर्ड पार्टी पैकेज हम दूसरे कहते हैं, जैसे आप मैंने बताया फेसबुक है, ट्विटर है, तो कुछ पैकेज उसमें इंस्टॉल नहीं होते क्योंकि ये मुख्तलिफ लोग डेवलप कर रहे हैं, मैं डेवलप कर रहा हूँ और कोई डेवलप कर रहा है, तो उसके अपने पैकेजेस डेवलप किए और पैकेजेस के अंदर उसने मुख्तलिफ फंक्शन डेवलप किए हैं, तो वो हम कहते हैं थर्ड पार्टी पैकेजेस। तो कोई ऐसी चीज है आप परफॉर्म करना चाहते हैं, वो आपके पास कुछ तो हो जाएंगी चीजें आपकी, कुछ नहीं होंगी, उसके लिए फिर आपको वो पैकेज फाइंड करना है कि ये फंक्शन किसी और शख्स ने बनाया हो, किसी और ने यूज किया हो।
तो दो चीज़ें आपके पास यहाँ क्लियर होनी चाहिए आपको। एक आपको जब आर स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी पैकेज आपको नजर आएंगे कि ये इंस्टॉल हुए होंगे। कुछ पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी पैकेजेस। तो दो किस्म के, जिस तरह मोबाइल फोन है, कुछ चीज़ आपके ऑलरेडी इंस्टॉल है, कुछ आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो आर के अंदर भी ये बुनियादी चीज़ है कि कुछ चीज़ आपको इंस्टॉल मिलेंगी, लेकिन कुछ पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेंगे। तो इसका कोई डिफरेंस बताएगा, दोबारा थोड़ा रिपीट करेगा, बिल्ट इन पैकेज और थर्ड पार्टी पैकेज में क्या फ़र्क है? डॉक्टर सैमा, आप बता सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। कोई नहीं समझ आएगी तो हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं कि आप समझ ना आए तो पूछना है आपने, इसीलिए कोई हम थोड़ा सा। जी से व्हाई नॉट। बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे जो आप बिल्ट इन पैकेजेस की बात कर रहे हैं वो आपके आर के साथ जब आप इंस्टॉल करते हैं तो मौजूद होते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि वो पैकेजेस मौजूद नहीं है, वो आपको एज ए थर्ड पार्टी कहीं से लेने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है कि जो जी जी, थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं क्या ये पेएबल होते हैं या फिर ये अनपेड होते हैं? अनपेड है। बिकॉज आर, मोस्टली जी ओके जी, आर के अंदर हर चीज फ्री है। किसी ने ऐसा नहीं पैकेज बनाया जिसने पैसे डिमांड किया, हमने नहीं देखा अभी तक। ओके ओके ओके, थैंक यू हाँ सर, हाँ थैंक यू। हाँ, तो ये दोनों चीजें आपके पास जो मौजूदा पैकेज है ये भी फ्री हैं। तो थर्ड पैकेज, ये प्लेटफॉर्म हमने शुरू में कहा था, ये टोटली फ्री आपके पास है। इसके लिए कोई पैसे चीजें जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बुनियादी ट्रेनिंग जरूरत है कि किसी फंक्शन को, किसी पैकेज को आपने इस्तेमाल कैसे करना। इंटरनेट पे आपको हर चीज अवेलेबल, ये फ्री है। अब तक तो हमने ऐसा कोई नहीं देखा। फ्यूचर में कोई अगर किसी पाकिस्तानी ने बना लिया तो वो शायद पैसे मांगना शुरू हो जाए, ये हो सकता है। तो ओके, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें फ्री हैं आपके पास। सर अमूमन ऐसा होता है जब भी नया कोई भी चीज आती है तो वो हमेशा फ्री होता है, लेकिन जब उसकी वर्थड हो जाता है वो चीज तो फिर वो डेफिनेटली हाँ पेएबल हो जाता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज जो है ना बिल्कुल हाँ एक कहना हाँ चाहिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाली जो हम बात कर रहे होते हैं ना, पहले उन्होंने मार्केट कर दिया, उसके बाद उन्होंने बिजनेस लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये वाली कहानी होती है। तो इसलिए ये तो उस वक्त तक है जब तक आर फ्री है तो चल रहा है, उसके बाद लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ये हो सकता है फ्यूचर में कोई इससे एप्लीकेशन या चीजें बनाए आपके पास, डेफिनेटली सी है। लेकिन अभी तक हमारे दौर तक तो फ्री है। बाद में आने वाली जनरेशन के अंदर कैसे वर्जन आ जाए जो पेड हो, नहीं वो डेफिनेटली आपके पास सही है। तो ये आपके पास, वही मैं बताया, आपके पास टू पैकेजेस हैं, बिल्ट इन पैकेज हैं, थर्ड पार्टी पैकेज हैं। ये विंडो 4 के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी आपके पास। तो इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं आपके पास कोई भी पैकेज, वो हम आर के अंदर भी अभी देखेंगे आपके पास। तो इसमें इंस्टॉल करने के भी इजी वे आपके पास, आप बाई कमांड भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। और दूसरा, ये विंडो 4 में भी एक इंस्टॉल बटन आपको अभी शो कराएंगे आपके, जब हम आर के अंदर जाएंगे तो वहां से आप इनको इंस्टॉल किया जा सकता है आपके पास। तो ये आपके पास, तो इस तरह आपके पास दो, ये आपके पास विंडो 4 के अंदर बिल्ट इन पैकेजेस और थर्ड पार्टी पैकेजेस आपके पास होंगे। इसके बाद वही है, इंस्टॉल आप कमांड के थ्रू कर सकते हैं आपके पास। और दूसरा आपके पास इसको उस बटन के थ्रू भी, जो विंडो 4 में भी मैं आपको शो कराऊंगा, उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी आपने थोड़ी सी यहाँ पे समझनी है कि ठीक है, मैंने व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लिया, अब मैं व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? कोई बताएगा थोड़ा सा इस सवाल का जवाब? इंस्टॉल तो कर लिया मैंने व्हाट्सअप पे अपने मोबाइल के अंदर, लेकिन मैं उससे वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, तो अब मैं कैसे करूँगा? तो बता सकते उस हैं? पर्टिकुलर बंदे का नंबर चाहिए जिसे नहीं कॉल नहीं करनी है। नहीं, वो तो करनी है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी इंस्टॉल हो गया मुझे, वो फोन पे नजर तो आ रहा है, अब मैंने इसे वीडियो कॉल करनी है, तो मैं पहला स्टेप क्या करूँ? पहले सर आप उसे रन करेंगे तो उसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें मांगेगा, ईमेल एड्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ें, कोई नंबर मांगेगा, उसके हाँ बाद नहीं, वो हाँ सही, एक नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है बात आप। नहीं, जब ठीक है व्हाट्सएप तो मुझे स्क्रीन पे नजर, जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूंगा मैं उसमें से कोई चीज नहीं कर सकता। इस तरह आर के अंदर भी एक चीज आपने नोट करनी है, पैकेज आपके पास मौजूद है लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन आप बाज़ वक़्त कमांड चलाएंगे तो वो एरर दे रहा हो। पैकेज तो खड़ा हुआ है आर के अंदर, फिर वो क्यों एरर दे रहा है? तो उस पैकेज को दूसरे स्टेप पे एक्टिवेट करना होता है, आपने उसको एक्टिव करना है आपके पास। तो वो मैं अभी आपको शो करूंगा। आपने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, लेकिन फिर भी आपको एरर दे रहा है, पैकेज आपको नजर आ रहा है लेकिन वो पैकेज शायद एक्टिवेट ना हो आपके पास। तो आपने पहले इंस्टॉल करना है पैकेज, फिर उस पैकेज को एक्टिवेट करना है, तब आपने जाके उस आपको फंक्शन परफॉर्म होगा आपके पास। तो ये चीज मैं आपको दिखाते हैं आर के अंदर थोड़ा सा जाके। ये आर की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये नजर नहीं आ रही। यस सर। ओके, 1 मिनट। अब आपके पास ये देखें, आपके पास ये आर की स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? हेलो, यस सर, शो हो रही है। ये सबको नजर आ रही है आपके पास? डॉक्टर इशरत, नूर मुसम्मिल, डॉक्टर तारिक, यस बरदान। यस सर। ओके, जी तो जी ये देखें आपके पास इंस्टॉलेशंस में, जैसे मैंने आपको बताया आपके पास ये देखें विंडो आपके पास 4 के अंदर ये पैकेजेस इंस्टॉल है आपके पास। कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपको इंस्टॉल का बटन आपको कोने पे नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने पैकेज का नाम देना है आपके पास।
ये आपके पास पैकेज, अब ये GG2 प्लॉट मैंने यहाँ पे आपके पास इसको रन करना है, तो ये आप इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा आपके पास। ये देखिए विंडो 3 के अंदर वो उसकी इंस्टॉलेशन कर रहा है उस पैकेज की आपके पास। सर ये इंस्टॉल का बटन राइट हैंड साइड पर है? ये बिल्कुल फाइल के नीचे ना विंडो 4 के अंदर आपके पास ये देखें इंस्टॉलेशन आपके पास, ये देखें ये पैकेज आपके पास इसने आपके पास इंस्टॉल कर दिया आपके पास। तो यहाँ आप सर्च बटन में जाके उसको देख सकते हैं कि ggplot2, ये देखें आपके पास, ये आपको नजर आ रहा है ggplot2 आपके पास। तो ये अब इंस्टॉल हो गया। अब इसको मैंने एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये देखें आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास इसमें कमांड होती है लाइब्रेरी के थ्रू आपके पास, ये देखें आप ggplot2 का आपके पास, इस कमांड के थ्रू आपके पास, या आप उसको जस्ट क्लिक करके उस पैकेज को एक्टिवेट करेंगे आपके पास। इस इंस्टॉल बटन पे जाएंगे आपके पास, आप उस पैकेज का नाम लिखेंगे, ggplot2 था आपके पास, तो इसको आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा तब आपके पास क्लिक करने से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या लाइब्रेरी के आपके पास इस कमांड के थ्रू, आप जो विंडो 3 में मैंने लिखी है इसके थ्रू भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट किसी को समझ आया हो? जी रिपीट करेंगे डॉक्टर सैफरमान साहब जरा इसको थोड़ा सा, ताकि बाकी लोग समझ जाए। ये इंस्टॉलेशन आप कैसे करेंगे? आप कोई भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना है सर, ये जो है इंस्टॉल करना है कोई पैकेज, तो इसमें विंडो 4 में जाके इंस्टॉल के ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ पे जो है लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने ggplot2 का कहा है वो लिखेंगे, तो वो इसमें विंडो 3 के अंदर जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद ये यहाँ पे हम सर्च करके भी देख सकते हैं कि ये इस विंडो 4 में मौजूद है। तो उसको एक्टिवेट करना होगा तो वहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, या फिर हम ये लेफ्ट साइड पे जो विंडो 3 है इसमें हम लाइब्रेरी और जो पैरेंथेसिस में ggplot2 लिखें और यहाँ पे इसको एंटर करना पड़ेगा सर, एक्टिव होगा। हाँ, आपका नाम लिख के उसको एंटर करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा आपको। जी ओके डॉक्टर तारिक साहब, आपको समझ आया? थोड़ा सा रिपीट करेंगे इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास विंडो 1 2 3 एंड 4 है यहाँ पे, और इसमें हमने जो पैकेज इंस्टॉल करना है उनकी लिस्ट हम यहाँ पर विंडो 4 के अंदर देख सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी या हमने जी, अच्छा ये तो वो वाले इसके पैकेजेस हैं जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हैं, और जो हमने बाहर से लेना है वो फिर हम यहाँ पर ये जो तीर का निशान नीचे को बना हुआ है अपडेट के बिल्कुल लेफ्ट पे, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और आपने मेरे ख्याल ये भी बताया था कि हम कोड भी इसको दे सकते हैं, और उसके बाद हमने फिर इसको एक्टिवेट भी करना होता है, जो हम लाइब्रेरी विंडो 2 के अंदर जाके ggplot2 यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको हम क्लिक करके भी कर सकते हैं, यस करके इंस्टॉल के नीचे। यस आप इसको क्लिक कर लें। दूसरा ये आपके पास यहाँ इस बटन से अगर आप कमांड के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये इंस्टॉल डॉट पैकेज की एक कमांड है, इस पे आपके पास उसको लिख के आपके पास यहाँ पे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, या इंस्टॉल डॉट पैकेज वाली कमांड इस्तेमाल कर लें, या आपके पास इसमें 4 में जाके ऑप्शन को इसको यूज कर लें। तो आप दोनों ऑप्शन से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सैमा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आर के अंदर? सर पैकेजेस इंस्टॉल करने का दो आपने मेथड बताए। पहला मेथड जो आपने बताया था वो जस्ट विंडो 4 के अंदर जाके इंस्टॉल में जाके सिलेक्ट करना है और फिर उसको जो है इंस्टॉल का बटन दबा के इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे विंडो 3 के अंदर नजर आएगा। या फिर आपने बताया है कि कमांड प्रॉम्प्ट जो कि हमारे पास विंडो 1 में है, उसके ऊपर जाके अगर हमें उस पैकेज का नाम आता है तो उसको लाइक का कमांड लिख के जो उसका पूरा फॉर्मेट है उस पर लिखने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैनुअली इस तरह से आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके डाल के और इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको बाय कमांड भी कर सकते हैं, आप उसको इधर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और लाइब्रेरी के थ्रू आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या आप उसको क्लिक करके आप कर सकते हैं। दो चीजें करनी है आपने, इंस्टॉल करना है पैकेज और उसको एक्टिवेट करना है आपके पास। तो इंस्टॉल आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कमांड के थ्रू कर सकते हैं, और उनको आप विंडो 4 में इंस्टॉल बटन के ऊपर प्रेस करके भी आप नाम लिख के आप उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक आपके पास जो आर जिस पे सारा काम करता है वो आपके पास पैकेजेस आपके पास हैं। तो ये आपके पास पैकेज आपने इंस्टॉल किया। अभी आपको मैं ये स्क्रिप्ट भी शेयर करूंगा इंस्टॉलेशन करने के लिए। दूसरा मैं जो आपको चीज मेन बता रहा था कि विंडोज के इंट्रोडक्शंस में अभी देखें x = 2 के बराबर मैं इसको कह रहा हूँ। ओके, अब मैं उसको कहता हूँ x + 1। अब आप नीचे, अब उसको मैं कहता हूँ x + 1 आपके पास, तो वो आंसर मुझे क्या दे रहा है? आपके पास 3 दे रहा है। अभी मैं इसके माइंड को वॉच करता हूँ। अब मैंने देखा ना आपके पास x = 2 उसको कहा, तो उसने अपने माइंड के अंदर इसको सेव कर लिया x = 2। अब जब मैंने उसको नीचे प्रेस किया x + 1, तो उसने मुझे आंसर दिया 3 का। अब इसका जो माइंड है आपके पास 2, मैं इसको वॉच करता हूँ। ये जो बोर्ड शॉप नजर आ रहा है आपके पास, अब ये देखें उसका जो माइंड है वो आपके पास टोटल एम्प्टी हो गया, एनवायरनमेंट उसके पास एम्प्टी है। अब आपके पास मैं उसको प्रेस करता हूँ x + 1 मुझे पता है। अब देखें आपके पास, तो अब नीचे आपको क्या नजर है? पहले मैं जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लू में अगर वो चलेगा तो रेगुलर आपके पास रन चल रहा है, लेकिन आपके पास रेड में उसने क्या कहा?
ऑब्जेक्ट एक्स नॉट फाउंड, क्योंकि उसके जहन को हमने वो कर दिया, आपके पास वॉश कर दिया, तो अब उसको नहीं पता बेचारे को एक्स क्या चीज है, तो वो आपके पास क्या दे रहा है, आपके पास एरर दे रहा है आपके पास। तो ये आपके पास किसी को पॉइंट समझ में आया आपके पास? सर ये आपने विंडो 3 में से इसको क्लियर किया है, तो पहले तो सर विंडो 3 में विंडो 2 में x इज इक्वल टू हाँ 1 दे रहा था ना, विंडो मतलब 2 में किया सर। विंडो 2 में सही, इसके सही। इसके माइंड को हमने क्लियर कर दिया, अब उसको नहीं समझ आ रही कि एक्स क्या चीज है, पहले तो उसके माइंड में ये चीज सेव थी आपके पास। सही। तो सर हाँ अभी स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ है, तो उसके स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लेकिन उसके माइंड में अब ये चीज नहीं है ना, ये देखिए ना, मैं इसको सही, दोबारा सही। आप या अब इसके माइंड में वो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जब आपके पास x प्लस 1 करता हूँ तो ये उसका, आप उसने आंसर देखें, आप 3 दिया है, लेकिन जो ही इसके माइंड को मैं वॉश करूंगा आपके पास, तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चीज आपके पास है। ये देखें आपके पास उसके माइंड को जब हमने वॉश किया ना, फिर हमने ठीक है। x प्लस 1 किया, तो अब वो एरर दे रहा आपके पास। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि जब आपके पास उसमें आपके पास ये हर चीज को अपने विंडो 2 के अपने माइंड में सेट करता जाएगा जो आप रन कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास अब उसको नहीं पता होगा तो वो आपके पास एरर देगा आपके पास। ओके डॉक्टर सैफ रहमान, आपने ये अंडरस्टैंड किया आपने ये पॉइंट को? Yes, ये मैंने अंडरस्टैंड किया है कि आपने विंडो में जो है 1 के अंदर कमांड को सेकंड जो विंडो है वो उसके अंदर उसको जो है सेव करता है, और अगर वो वहाँ पे सेव नहीं है तो फिर यहाँ पे करंट विंडो के अंदर आपको जो है ना एरर शो करेगा, दैट नॉट फाउंड। हाँ वो आपके पास एरर शो करता है क्योंकि आपने उसके माइंड को आप वो कर दिया, वॉश कर दिया, इसलिए उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही आपके पास। तो ये देखिए आपके पास ठीक है, आपके पास समझ आ गया आपको कि विंडो 1 में हम कमांड्स लिख रहे हैं, विंडो 2 में वो सेव कर रहा है, विंडो 3 में या वो रेगुलर रन कर रहा है या आपको एरर देगा। विंडो 3 में हमने डिस्कस किया अभी तक पैकेजेस आपको जो मतलब सारे इंस्टॉल यहाँ से होंगे, यहाँ आपको नजर आएंगे। और एक बात हमने और की थी कि आपको यहाँ पे ग्राफ भी नजर आएगा विंडो 4 के अंदर। ठीक है आपके पास अब आपको विंडो 4 में आपके पास कोई ग्राफ नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है प्रोग्राम ऑब्जेक्ट का। हाँ ये देखा आपके पास विंडो, अब आपको क्लियर हो गया कि आपके पास विंडो 1 में क्या हो रहा है, विंडो 2 में, विंडो 3 में और विंडो 4 में। इसको कोई रिपीट करेगा आपके पास? जी डॉक्टर सैमा, कैन यू प्लीज रिपीट विंडो ऑल 4 विंडोज? सर विंडो 1 जो है हमारे पास प्रॉम्प्ट विंडो है जिसके ऊपर हमने कमांड लिखी है और फिर उस कमांड को मेमोराइज किया है विंडो 2 ने, और विंडो 2 की मेमोराइजेशन के बाद एग्जीक्यूशन जो उसका हुआ है वो विंडो 3 के अंदर हुआ है और विंडो 4 के अंदर उसने डिस्प्ले कर दिया है। हाँ डिस्प्ले कर दिया आपके पास। ये तो 4 विंडो के अंदर आपके पास पैकेजेस में विंडो 4 के अंदर, और आपको ग्राफिकल डिजाइन जो आपके पास प्रेजेंटेशन आएगी आपके पास वो विंडो 4 के अंदर आएगी। ओके नूर मुजम्मिल साहब, कैन यू प्लीज रिपीट ऑल 4 विंडोज? यस सर। जो हमारे पास विंडो 1 है इसमें हमने जो अपनी कमांड स्क्रिप्ट जो है वो राइट अप की है। लाइकवाइज हमने पहले एक एग्जांपल देखी कि x इज इक्वल टू 2, और जो विंडो 2 थी उसने उसको मेमोराइज कर लिया। इसी तरह जब हम विंडो 3 में आए हैं, वहां पर हमने लिखा कि भाई x प्लस 1, तो जो हमारे पास उस वक्त आंसर आया वो था समथिंग 3। तो जो हमारे पास विंडो 2 में जो मेमोराइज हुआ था उसने उसको सम आउट करके 1 के साथ जो है वो उसको आंसर किया 3। और लाइकवाइज अगर ये दूसरी एग्जांपल है जो है हमारे पास प्लांट हाइट की है, प्लांट हाइट हमारे पास विंडो 1 में हमने प्लांट हाइट का डाटा एंटर किया स्क्रिप्ट टाइप, और विंडो 2 ने मेमोराइज किया, विंडो 3 में जो है उसकी एग्जीक्यूशन हुई, और विंडो 4 ने उसका जो ग्राफ है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें जो है वो कर दी है उसकी। यस तो ये आपके पास बुनियादी इंट्रोडक्शंस था कि आर 4 विंडोज के अंदर काम कैसे करता है, चीज़ों को याद कैसे रखता है, और एरर आपके पास कहाँ कहाँ आएंगे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसको हम मजीद देखेंगे आपके पास कि ये किस तरह आगे सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस जी यस जी सर, अगर मुजम्मिल। हम फर्स्ट विंडो 1 में अगर हमारे पास कोई कमांड वगैरह नहीं है, नहीं इंटर की हुई हमने, और हम डायरेक्ट विंडो 4 में गए, वहां से जाकर हमने कोई भी पैकेज वगैरह जो है वो इंस्टॉल करना है, इज इट पॉसिबल कि वो वहां से इंस्टॉल हो जाएगा? जी वो हमने आपको और उसको बताया विंडो, एक्टिवेट करना। जी एक्टिवेट हुई आपके पास ये विंडो 4 के अंदर जो आपके पास बटन आपके पास ये लगा हुआ है आपके पास फाइल के नीचे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। आप दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया, या कमांड्स के थ्रू है या आपके पास यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको, वो मसला नहीं है, पैकेज का कोई इशू नहीं। ओके तो ये आपके पास, तो फिर हम अपने पीपीटी की तरफ थोड़ा सा वापस आएंगे। आप ये पीपीटी आपको डिस्प्ले हो रही है आपके पास? यस सर डिस्प्ले हो रही है। ओके गुड।
तो आपके पास अब ये हमने आर को आपने समझ लिया कि आर कैसे कि 4 विंडोज में काम करता है। उसके बाद आपने पैकेज का भी देख लिया और उसके बाद फंक्शंस का भी आप वो देखेंगे ऐसा ऐसा कि फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आपके पास फर्स्ट जो मेन स्टेप है, आपने अपने डाटा को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो डाटा की अरेंजमेंट है वो आपके पास सही होनी चाहिए थोड़ी सी। आप फिर आर के अंदर मसला नहीं है, कमांड आपके पास सारी आपको मिल जाएंगी जो भी आपने काम करना है। लेकिन अगर आपका डाटा सही अरेंज नहीं है, उसमें थोड़े से एरर्स हैं, तो वो फिर आर आपको मुसलसल तंग करता रहेगा, वो एरर देता रहेगा, क्योंकि आपको बुनियादी डाटा जो मेन हम जिस पे आर सारा काम कर रहा था वो ये अभी सही अरेंज नहीं है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं, इनको थोड़ा सा आपने, आप जब आज की असाइनमेंट पे अपने डाटा को अरेंज करना, तो इन चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो आपके पास जो आर स्क्रिप्ट आपके पास जो मैं आपको शेयर करूंगा, और जो दूसरा आपकी डाटा फाइल्स हैं सारी सेम फोल्डर में होनी चाहिए। ये नहीं आपकी डाटा फाइल कहीं और पड़ी है, आपका स्क्रिप्ट कहीं और पड़ा है, तो आर को वो कनेक्शन डेवलप करने में मसला होगा। तो आपने जो सारी चीजें डाटा और आर के स्क्रिप्ट रखने हैं वो सारे सेम फोल्डर में होने चाहिए आपके, ना कि मल्टीपल फोल्डर्स में आप उनको रखें। उसके बाद आपके पास दूसरा जो मेन पॉइंट है, आपके पास इसमें जो आपने फोल्डर का नाम रखना है आपके पास, उसमें किसी किस्म का स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, आर फोल्डर्स, आर के दरमियान में अब आर बेचारे को नहीं समझिए सिंगल स्पेस है या डबल स्पेस है आपके पास, तो यहाँ आपको आर गलती के चांसेस आपके पास बढ़ जाएंगे। जब आपने यूं लिखना है आर अंडरस्कोर फोल्डर, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, तो इस तरह आपने लिखना है उसको कि डैश दे के आपके पास। इसी तरह आपने जो भी एक्सेल शीट के अंदर डाटा, एक्सेल शीट का नाम रखना है, उसका भी आपने उसमें भी कोई स्पेस नहीं देनी। डाटा अंडरस्कोर पॉट एक्सपेरिमेंट है, डाटा अंडरस्कोर फील्ड एक्सपेरिमेंट है, डाटा अंडरस्कोर आप कोई नाम रखना चाहते हैं वीट कार्टन या किसी किस्म माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें भी आपके पास वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपके पास जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स लिखते हैं या मेजर्ड वेरिएबल, जैसे मैंने प्लांट हाइट लिखा, तो प्लांट हाइट के दरमियान में भी आपने स्पेस नहीं देनी, वो अंडरस्कोर लिख देना है, डॉट लिख देना है, कोई चीज, लेकिन उन दोनों को आपने अलग-अलग नहीं रखना। मेन चीज बताइए कि आर कंफ्यूज हो जाता है कि ये सिंगल स्पेस है या डबल स्पेस है आपके पास, इसमें क्या मसला है। तो आपने जब भी आपने करना है, आपने एक तो आपने करना है कि आपकी तमाम स्क्रिप्ट और तमाम डाटा फाइल एक ही फोल्डर के अंदर मौजूद हों। दूसरा, आपके फोल्डर के अंदर नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, आपके डाटा फाइल के अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, जो आप ट्रीटमेंट वेरिएबल या आप मेजर्ड वेरिएबल्स लिखते हैं उसमें भी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास लेफ्ट साइड टेक्स्ट अलाइनमेंट हो चाहिए, डाटा को आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। आप अगर डाटा को एक्सेल शीट के कॉलम के सेंटर में रखेंगे तो आपके पास शुरू में स्पेस क्रिएट हो जाएगी, तो आर जब वहां उसको रीड करेगा तो वो उसमें भी आपके पास एरर के चांस होंगे। आखिरी जो मेन पॉइंट आपने गौर करना है इसमें यह है कि आपका जो बाजू का एक डाटा हमने इंटर किया हुआ है, साइड पे हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, हम आपके पास प्लस माइनस कर रहे होते हैं, कोई चीजें ऐड कर रहे होते हैं आपके पास, तो वो आपने नहीं करना। डाटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो एक्सेल शीट है, जो डाटा फाइल है, उसके अंदर आपके पास वो डाटा मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज आपके मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ आपके पास वो डाटा सारा मौजूद होना चाहिए। तो ये मेन चीज आपके पास है कि आपके आर फाइल्स और डाटा फाइल्स सारे एक फोल्डर में होने चाहिए। आपके पास कोई भी फोल्डर नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, आपके जो एक्सेल फाइल है उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए आपके पास। आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल और मेजर वेरिएबल में कुछ स्पेस, डाटा आपके लेफ्ट साइड अलाइनमेंट होना चाहिए। डाटा के अलावा जो भी आपने कुछ चीज नहीं लिखनी है, आपने किसी भी किस्म की कैलकुलेशन या कोई भी नंबर आप किसी कोने में भी लिखेंगे अपने डाटा शीट में, तो आर उसको रीड कर लेगा और उससे आपके पास एरर के चांस आ जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को कोई एक बार रिपीट करेंगे आपके पास? जी डॉक्टर सैफ रहमान, आपके पास थोड़ा सा इसको रिपीट कर देंगे आप? ये क्या क्या चीजें आपने ख्याल रखना है, अगर इन चीजें आपके डाटा के अंदर प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है तो चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं आपके पास। यस डॉक्टर वरदान, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट पॉइंट? जी सैफ रहमान, डॉक्टर सैफ रहमान जी प्लीज। डॉक्टर सैफ रहमान पहले, चलो फिर डॉक्टर। यस सर, ये इसमें सर बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट सर आपने जो बताया है वो ये है कि इसमें जो भी जो डाटा है वो सेम जो है फोल्डर के अंदर होना चाहिए, आर की फाइल्स, और जो डाटा हमने इसके अंदर आर के अंदर जो है लेके आना है वो सारी फाइल जिसको जो एनालाइज करना है वो सेम नेम देने में वहाँ पे कुछ स्पेस ना हो, अंडरस्कोर लिख के उसको नेम दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपने एक्सेल के अंदर डाटा जो है लिखना है तो वो लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट उसकी स्टार्ट करनी है, और कोई भी शुरू में कुछ कॉलम या स्पेस नहीं छोड़ना, तो उसकी वजह से फिर उसमें एरर आ जाए। ओके ओके डॉक्टर वरदान, कैन यू प्लीज रिपीट? जी सर, इसमें जैसे आपने बताया कि आर फाइल से रेलेवेंट जितनी चीज़ें हैं वो हमने एक ही फोल्डर में सेव करनी है, और दूसरा जब हमने फोल्डर को नेम देना है तो उसमें स्पेस नहीं देनी है, उसको अंडरस्कोर या कोई और अंडरस्कोर यूज़ कर लेना है। और उसके अलावा जो हमने वेरिएबल्स के नाम देने हैं उसके अंदर भी कोई हमने स्पेस नहीं देनी। और उसके अलावा जो हम एक्सेल शीट पुट करेंगे उसके अंदर हमारे डाटे से अलावा कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो है ना उसमें एरर आ सकता है, जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसमें एरर आ सकता है। ओके दैट्स ग्रेट।
ओके अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है मेरे पास। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने ना चौथे नंबर पे लिखा है कि नो स्पेस बिटवीन द ट्रीटमेंट वेरिएबल्स एंड द मेजर्ड पैरामीटर्स, तो ये थोड़ा सा जरा मुझे क्लियर नहीं है। और एक बात तो ये, दूसरी ये कि अगर आप मुझे कोई एक्सेल शीट के अंदर अगर मुझे दिखा देना कि किस तरह आपने इसको, मतलब ओके इसका मतलब क्या है, वो जरा ओके 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 ये एक्सेल शीट नजर आ रही है सर आपको? जी ओके ये देखें ना आपके पास, ये देखें हमने नाइट्रोजन अंडरस्कोर रेट लिखा हुआ है। अब ये आपको नजर आ रहा है आपके पास, ये आपको नजर आ रहा होगा ऊपर। ये देखें आपके पास, इसमें आप स्पेस नहीं है, मतलब आपके पास यहाँ आपने स्पेस नहीं देनी। इसी तरह देखें प्लांट हाइट है, ये देख प्लांट अंडरस्कोर हाइट हमने डाटा को अरेंज किया। अगर प्लांट हाइट लिखेंगे ना तो उसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगी आपके पास, और आर आप वो आपके पास देगा, एरर देगा आपके पास। तो इस हवाले से आपके पास, और ये लेफ्ट साइड अलाइनमेंट आपने रखना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ तो फिर भी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो आपने हमेशा डाटा को ये रखना है आपके पास। तो ये आपके पास सेंटर अलाइन रखना है आपके पास। तो इसके अलावा कोई भी चीज कोने पे इधर इधर, मतलब कोई भी चीज मैं इधर कोने पे लिख देता हूँ, ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। डाटा के अलावा कोई भी पॉइंट आपके पास मौजूद नहीं होना चाहिए। तो आपके पास डाटा के अलावा कोई भी चीज आपने उसमें ऐड कर दी आपके पास, कोई जीरो लिख दी कोई साइड पे, तो आर इसको रीड कर लेगा आपके पास। तो डाटा कोई भी, आप जब फाइल का नाम देखें डाटा अंडरस्कोर प्लांट, इस तरह फोल्डर का नाम देखेंगे उसमें स्पेस नहीं होगी। तो जब आपने स्पेस क्रिएट कर दी तो आपके पास फाइल इंपोर्ट नहीं हो सकती, आर उसको आर के अंदर वो आप इनपुट नहीं कर सकते आपके पास, तो वो चांस बढ़ जाते हैं आपके पास। तो ये आपके पास, तो इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है कि कैसे करना है आपके पास। तो ये आपके पास आर का, मैं आज का लेसन समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या आपके पास देखा। हमने आर को देखा कि ये आपके पास आर सॉफ्टवेयर रॉस और रॉबर्ट ने डेवलप किया। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल फ्री है, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है बाकी सॉफ्टवेयर की निस्बत। इसको ये कैसे ऑपरेट करता है, 4 विंडोज के अंदर ये ऑपरेट करता है। आर के ऑपरेशंस के लिए आपको हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको एक पैकेज दरकार है। पैकेज कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के पैकेजेस हैं, बिल्ट इन पैकेजेस हैं, थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं। जो बिल्ट इन पैकेज हैं वो जब आप आर स्टूडियो इंस्टॉल कर लेंगे तो उसी के साथ इंस्टॉल होंगे। लेकिन कुछ पैकेज, कुछ फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ते हैं, जिनको हम थर्ड पार्टी पैकेज का नाम देते हैं। और पैकेज इंस्टॉलेशन आपने देख लिया कि आप 2 तरीकों से पैकेज कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, और विंडो 4 के अंदर जो बटन अवेलेबल है उससे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने आखिर में जो पॉइंट देखा कि आपने अपने डाटे को एक्सेल पे प्रॉपर्ली अरेंज करना है, और उसमें जो हमने स्पेस के इश्यूज हैं, जो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है उसको देखना है आपने। अगर आपने सेंटर में कर दिया तो स्पेस क्रिएट हो जाएगी, नेम फोल्डर के अंदर, नेम के अंदर, फाइल के अंदर, आप इन सारी चीजों को आपने प्रॉपर्ली रखना है। तब जाके आपके पास आर के अंदर एरर के आर पास का चल तो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं आपको एरर आएंगे इन चीजों में अगर आपने स्पेस क्रिएट कर दी। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है। इंशाल्लाह हम इससे आगे कल वाले लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम स्लो स्लो करके चलेंगे। जिसको भी कोई मसला हो इसीलिए ओपनली डिस्कस कर सकता है कि हमारे पास क्या व्हाट्सअप कर सकता है, मुझे ईमेल कर सकता है, आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हमें भेज सकता है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। आपको स्क्रिप्ट भी मैं शेयर कर दूंगा, आपके पास डाटा फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी आपको सारी लेसन की शेयर हो जाएगी, और ये पीपीटी लेसन भी आपको हर चीज़। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीख के जाएँ और अपनी यूनिवर्सिटी में और अपने इदारों में लोगों को सिखाएं। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप यहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि ये जब हमने पैकेजेस देखे थे विंडो 4 के अंदर, ठीक तो है। आप खोल सकते हैं आर को, जी जी स्टूडियो? जी जी सर। जी जी। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने देखा था कि जहाँ पर आपने जीजी प्लॉट लिखा है सर्च के अंदर, अपडेट के राइट साइड पे, तो इसके नीचे आपने वर्जन लिखा है 3.42, 1.1, 0.55, 0.5.0, 0.9.2। जी जी और अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जिस तरह विंडोज के कुछ वर्जन आते हैं और उसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, तो इस तरह क्या आर का कोई अपना वर्जन है जिसके अंदर ये जो इसके पैकेजेस हैं इनका कोई स्पेसिफिक वर्जन है जो इनके साथ कंपैटिबल होगा, या हम कोई भी वर्जन इसके अंदर ले सकते हैं किसी भी ये आर के वीडियो के वर्जन के लिए? हाँ, मैंने ये बताया था आपको, जब इस तरह एरर आते हैं, बास वर्जन्स के आर स्टूडियो के वर्जन आते हैं बेसिकली। पैकेज तो मतलब तकरीबन वही रहता है, उसको पैकेज भी लोग अपडेट करते रहते हैं। ये नहीं पहले पैकेज में 2 फंक्शन, जैसे व्हाट्सएप आपके पास डेली अपडेट होता रहता है, इस तरह पैकेज भी लोग अपडेट करते रहते हैं, और उसके साथ सिमिलरली आर स्टूडियो भी अपडेट होता रहता है। तो बास आप ये ऐसा भी आता है, कुछ आप देखेंगे वो आपस में कंपैटिबल, आर स्टूडियो और पैकेज कंपैटिबल नहीं होता, वो उसमें इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बाजू का प्रीवियस वर्जन में जाके, या उसके दूसरे तरीके भी हैं उसको इंस्टॉल करने के, तो इसलिए हम प्रीवियस वर्जन की तरफ बाजू का हमें जाना पड़ता है कि पैकेज और आर स्टूडियो आपस में कंपैटिबल नहीं रहते किसी एक स्टेज पे जाके, इसलिए आपको कुछ वर्जन इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपको प्रीवियस। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपका विंडो 2 के अंदर है कि आर 4.2.1 है, अब मैंने जो डाउनलोड किया रिसेंटली वो 4.3 पे है। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। मुझे अगर आपको कहीं मुझे एरर लगेगा, मैं उस तरह भी आप वाले की तरफ भी जा सकता हूँ, इसको भी अपडेट कर सकता हूँ, वो इशू नहीं है। मतलब जब तक मुझे इसमें चीजें चलती रहेंगी मैं इसको चलाता रहूँ, जब मुझे पता चलेगा मेरी कोई चीजें नहीं हो रही तो मैं इसको अपडेट की तरफ ले जाऊंगा। वो कोई नहीं होता बाजू का, वो आप कर सकते हैं, वो दोनों तरफ हम ठीक है, जा बहुत सकते हैं, आपके पैकेज की तरफ भी जा सकते हैं और हमारे पैकेज की तरफ भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो जी आप
फ्रेंडली पूछ सकते हैं आराम से, आपने तसल्ली से। ये लैंग्वेज है, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी बुनियाद आपकी ये होगी तो ऐसा ऐसा आप इजीली आप आसानी की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस है, चीज़ों को बार बार सुनना है, बाजू का शुरू में नहीं समझ, मैं इसलिए चीज़ें रिपीट करवाता हूँ आप दोस्तों से कि शायद कोई मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे, ताकि हम इसको ऐसी कम्युनिटी लेकर चलें, हम इसको सीख सकें। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आपके पास आप पूछ सकते हैं। ये डॉक्टर मारिया, डॉक्टर इशरत, डॉक्टर समा, आपके कोई कमेंट्स हों कोई आज के लेक्चर्स के हवाले से या कोई चीज़, तो अपने शेयर कर सकते हैं। यस सर अच्छा था, बेस्ट रहा, फर्स्ट था, समझ आया, पता चला कि हाँ क्या चीज़ हो रही है। और ये कि थोड़ा सा अगर प्रोग्रामिंग की आपको बैकग्राउंड हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी विंडो और क्या चीज़ क्या कह रही है, और कमांड और एग्जीक्यूशन क्या चीज़ है, वो सब समझ आ जाती है। हाँ, नहीं बिल्कुल आपके पास। तो ये खौ कि मुश्किल नहीं है, एक चीज़ तो आप, मैं पहले लेसन का हमारा मकसद भी यही था कि आपको ये इसीलिए इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें हो जाएँगी। तो ये नहीं मुश्किल नहीं समझना, बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करना है, जहाँ एरर आएगा हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं। तो डॉक्टर बरदान साहब, आपको कैसा लगा लेसन 1? जी सर, बहुत अच्छा लगा, बेसिक्स पता लग गई हैं। कुछ चीज़ें सर वो मैंने पहले सर्च की हुई थी, तो वो मेरी वो चीज़ें एक रिकॉल हो गई हैं, रिफ्रेश हो गई हैं। तो मज़ीद सर ये फर्दर जब हम नेक्स्ट पे जाएँगे तो मज़ीद इसमें आगे हम बेहतर हो जाएँगे। हाँ, इंशाल्लाह मतलब मैंने आपके पास। ओके, नूर मुज़म्मिल साहब कैसा रहेगा आपका कोई? थोड़ा इसको मुश्किल तो नहीं हो रहा कोशिश कोई चीज़? जी सर, मुश्किल नहीं है, लेकिन चीज़ें मेरे लिए ये बिल्कुल न्यू थी, क्योंकि फर्स्टली मेरा इस पे कोई प्रायर नॉलेज नहीं था, और इन्फॉर्मेटिव सेशन था। गुड। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, डॉक्टर इशरत, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं आपके पास। यस, जी सर, मेरी एक तरीके से रिवीजन है। असल में मैंने अपना कंप्यूटर अपडेट करवाया है, तो आर प्रोग्राम अब मौजूद नहीं है। आज के बाद मैं इंशाल्लाह इंस्टॉल कर लूंगी। अगर ओके, कोई गुड। डिफिकल्टी आती है डेफिनेटली आप में। सर नहीं, एक नहीं, बात, आपकी टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्किल्स इज वेरी गुड। बहुत अच्छा लेक्चर आप डेमोस्ट्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं डॉक्टर इशरत, कोशिश करते हैं कि आप लोग ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करते हो, मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह। ओके, डॉक्टर मारिया खान। डॉक्टर मारिया खान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर मारिया खान, कैसे, कोई रिवीजन हुई है कोई आपकी? जी बिल्कुल भैया, पहले अगर मैं कंपेयर करूँ पहले लेक्चर से, दूसरे लेक्चर से आपने भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और टू द पॉइंट कर दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहली जो वेरी फर्स्ट जो आपका आज का लेक्चर है उसमें आपने ना जो आप बात की 2-3 चीज़ें पूछते थे, आपने उसमें इसको बड़े प्रिसाइजली ईज़िली कर दिया। तो ये एक मेरा ख्याल है तो बहुत अच्छा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर काफ़ी कामयाब रहा है, और आपकी टीचिंग काफ़ी सही है। माशाल्लाह, तकरीबन सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई। और अगर मैं कंपेयर करूँगी फर्स्ट से, तो मैं भी लिया